والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم امیر العظیم صاحب قیم پاکستان جماعت اسلامی، ڈاکٹر طارق سلیم صاحب امیر صوبہ، پروفیسر رانا عمر صدیق صاحب، پروفیسر تفاخر محمود گوندر صاحب اور میرے نہایت ہی محترم مہمانوں، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جماعت اسلامی حلقہ پی 32 کی دعوت پر اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور تشریف لائے۔ میں صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں معزز مہمانوں کا کہ وہ بھی تشریف لائے، اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں حلقہ پی 32 کے ذمہ داران و کارکنان کو کہ جنہوں نے سخت موسم کے باوجود انتھک محنت کی اور یہ ایک خوبصورت بدل دو نظام کنونشن منعقد کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی جزائے خیر عطا فرمائیں۔ میں انتہائی مختصر وقت میں چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ معزز سامعین، جماعت اسلامی عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے۔ محترم حافظ نعیم الرحمن صاحب کی قیادت میں بدل و نظام اجتماع عام کے موقع پر اس جد و جہد کو ایک فیصلہ کن مرحلے کی جانب گامزن کیا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں بدل و نظام کنونشن حلقہ پی 32 کے اندر ہم لوگوں کی رہنمائی کے لیے، آبیاری کے لیے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے معزز مہمان تشریف فرما ہیں، وہ بدل و نظام کنونشن کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ میں حلقہ پی 32 کے حوالے سے چند ایک باتیں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور آپ لوگوں کی موجودگی میں حلقہ پی 32 کا کنجا شہر کا مقدمہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو حالات ہیں وہ پورے ملک سے مختلف نہیں ہیں۔ اگر ہم انسانوں کے جو بنیادی ان کی جو ضروریات ہیں ان کی بات کریں، تعلیم کی بات کریں، صحت کی بات کریں، روزگار کی بات کریں، تو یہ حلقہ پی 32 میں اپنے معزز مہمانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ نہ صرف پنجاب بلکہ پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم حیثیت رکھتا ہے۔ سیاسی تاریخ میں جو بھی نمائندہ یہاں سے منتخب ہوتا ہے، پاکستان کے نگران وزیر اعظم بھی رہے ہیں، ڈپٹی وزیر اعظم بھی رہے ہیں، فیڈرل منسٹر بھی رہے ہیں۔ یہ حلقہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اتنی ذمہ داریوں کے باوجود، عہدے رکھنے کے باوجود، میں اگر اس کی تعلیم کی بات کروں تو تعلیم کا نظام جو کہ قوموں کی ترقی کی ضمانت ہوتا ہے، اس کے اندر ان کی حالت یہ ہے کہ پوری پلاننگ کے ساتھ اس شعبے کا بیڑا غرق کرنے کی ذمہ داری انہوں نے اٹھا رکھی ہے۔ صرف کنجا شہر کے اندر میری ایک بزرگ دوست سے بات ہو رہی تھی، وہ یہ فرما رہے تھے کہ میں نے 1968 کے اندر میٹرک کیا تھا، اس وقت بھی کنجا میں 2 ہائی اسکول تھے اور آج بھی وہی 2 ہائی اسکول ہیں، اور ان 2 اسکولز کی اگر بات کی جائے تو گورنمنٹ پبلک اسکول جس کی بلڈنگ کچھ عرصہ پہلے ڈیمالش کر دی گئی تھی، اور آج 5 سے 7 سال گزرنے کے باوجود وہ بلڈنگ نہیں بنائی گئی۔ انٹر کی کلاسز کے اندر ان بچوں کو ضم کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے۔ اسی طرح جو دوسرا ادارہ ہے گورنمنٹ اسلامیہ اسکول، جو کہ کنجا کا ایک معروف تعلیمی ادارہ ہے، جس کے اندر تعلیم حاصل کرنے والے لوگوں نے پاکستان کے اندر بڑی اہم ذمہ داریاں ادا کی ہیں، اس کی بلڈنگ کا ایک بڑا حصہ خود ڈپٹی کمشنر صاحب نے اس کو ناقابل استعمال قرار دیتے ہوئے اس کو بند کیا ہوا ہے، اور آج کئی سال گزرنے کے باوجود اس کو نہیں بنایا گیا۔ میں ان دوستوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پہ 2 بلاک بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنے حصے کے چراغ کو جلایا ہے، لیکن ہماری ریاست کیا کر رہی ہے؟
इसी तरह अगर मैं सेहत की बात करूं तो इस पूरे हलके के अंदर जिसके 2,53,000 वोटर हैं, लगभग 5 लाख आबादी है, इसके अंदर सेहत का मामला ये है कि सिर्फ एक अस्पताल है THQ, जिसका इफ्तिताह जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहील शरीफ साहब ने किया था। उस वक्त से लेकर आज तक उनके जाने के बाद इस अस्पताल का ट्रामा सेंटर बहाल नहीं किया गया। और मेरे पिछले दिनों एक डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, आई स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने कहा कि हाफिज साहब यहाँ पे आंख के ऑपरेशन के लिए एक टेस्ट किए जाते हैं, उस टेस्ट के लिए वो मशीन नहीं है, हम लोगों को गुजरात भेजते हैं, किसी प्राइवेट क्लिनिक पे भेजते हैं, तो फिर कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग प्राइवेट डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे शोबाजात ऐसे हैं कि पेशेंट आता है, उसका मुकम्मल इलाज करने की बजाय अल्ट्रासाउंड की सहूलत ना होने की वजह से उसको गुजरात भेज दिया जाता है। इतने बड़े हलके में सेहत का ये आलम है कि जो प्राइवेट जो अस्पताल हैं उनको भी प्राइवेट किया जा रहा है। अगर यहाँ पे मैं ज़राअत की बात करूं तो हमारा ये जो इलाका है इसका 70% हिस्सा ज़राअत पर मुश्तमिल है, इसका जो रकबा है उसकी अगर बात करें तो ये जो मिनिस्टर साहिबा है, ये जो चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं, इन्होंने तो ये प्लान कर रखा है कि उन्होंने किसान का बेड़ा गर्क करना है। पाकिस्तान के अंदर जदीद आलात तो है ही नहीं, मशीनरी नहीं है ज़राअत की तरक्की के लिए। जब किसानों ने उसको पोस्ट करनी होती है, उसको उसके लिए जिनस नहीं मिलती, उसके लिए खाद नहीं मिलती। खाद की कीमत तो आप खुद जानते हैं, यहाँ पे बहुत सारे काश्तकार भाई बैठे हुए हैं कि वो किस तरीके से काश्त को मुकम्मल करते हैं और फिर उसकी फसल तैयार होती है, फरोख्त का टाइम आता है तो बाज़ औक़ात तो हुकूमत इतना कम रेट मुकर्रर करती है कि उसके नतीजे में उनकी लागत भी पूरी नहीं होती। कैसे कैसे माफियाज हैं, शुगर माफियाज हैं, लोग यहाँ पे गन्ने की काश्त करते थे, आज उन्होंने वो भी छोड़ दी है। मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, मैं ये हल्का PP 32 की बात आपके सामने रख रहा हूँ कि इन लोगों ने, रियासत ने हमें क्या दिया है। अगर मैं सीवरेज की बात करूं तो ये जिस शहर के अंदर हम मौजूद हैं, बल्कि पूरे हलके के अंदर मैं जिम्मेदारी से बात करता हूं कि पूरे के पूरे हलके के अंदर किसी भी शहर में सीवरेज का कोई निजाम नहीं है। कुंजा शहर है, शातीवाल शहर है, अरबों रुपए लगाकर कुंजा शहर के अंदर सीवरेज का निजाम बिछाया गया था, उसको बार बार चलाने की नाकाम कोशिश की गई, फंड जनरेट किए गए, लेकिन ऐसा नाकिस निजाम था कि हमने उसको पूरा 1 महीना भी आज तक चलते हुए नहीं देखा। ड्रेन सिस्टम है, लेकिन उसके लिए ये जो हमारे बल्दियाती नुमाइंदे हैं जो तरक्की की बात करते हैं, अवाम की आंखों में धूल झोंकते हैं, इनकी नाअहली का ये आलम है कि उन्होंने सर्कुलर रोड को 10 साल 15 साल में पैदल तामीर करके उसकी हाइट को इतना ऊंचा कर दिया है, प्लेंथ लेवल का ख्याल नहीं रखा, जिसके नतीजे में सर्कुलर रोड ऊंचा है तो उन्होंने शहर के लोगों के मकान डूब जाते हैं। और इससे बड़ा जुल्म उन्होंने ये किया है कि अपनी सियासत चमकाने के लिए गलियों को भी ऊंचा कर दिया है। लोग बेचारे कुछ तो ऐसे हैं जो अपने घर में जाने के लिए सीढ़ियां नीचे उतरते हैं, पानी नालियों के अंदर 1 फुट से 1.5 फुट तक खड़ा रहता है और उनकी बिल्डिंग्स खराब हो रही हैं, ये आलम है। और पूरे के पूरे शहर के लिए उसकी ड्रेन का इन्होंने ये इंतजाम किया है, तो निकलने वाला जो नाला है उसकी चौड़ाई महज 1 से 1.5 फुट तक है। उस वक्त भी हमने इनको कहा था कि आप इसकी चौड़ाई को बढ़ा दें, 3 साइड से शहर के जो नाले निकलते हैं कम से कम इनकी चौड़ाई को 2 से 3 फुट कर दें, तो जब बारिश आती है तो उस वक्त ये जो पूरे का पूरा शहर सैलाब का तालाब का मंजर पेश करता है, पानी सड़कों के ऊपर से गुजरता है, लोगों की जिंदगी अजीरन हो जाती है, लेकिन ये लोग टस से मस नहीं होते। मेरे दोस्तों, मैं किन किन मसाइल की बात करूं, इस हमारे हल्के में अल खिदमत मरकज नहीं है, इस हमारे हल्के में रेस्क्यू का कोई इदारा नहीं है, इस पूरे के पूरे इलाके में ना कोई रोजगार है, इस पूरे इलाके में 5 लाख लोगों के लिए
कोई रोजगार नहीं है, कोई तालीमी इदारा नहीं है, कोई बॉयज का इंटर कॉलेज नहीं है, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं है। लोग रोजगार कहां से हासिल करेंगे? मैं एक तो बात जरूर अर्ज करना चाहता हूं, अपने नौजवानों के लिए बात करना चाहता हूं कि हमारी यूथ जो कि इस मुल्क का 65% है, और जब यूथ तरक्की करती है तो मुल्क तरक्की करता है, लेकिन इन लोगों ने हमारी यूथ को कोई विजन नहीं दिया। हमारे नौजवान बेकार बेकिरदार जिंदगी गुजार रहे हैं, और एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 साल में 30 लाख से ज्यादा पढ़े लिखे नौजवान ये मुल्क छोड़ चुके हैं। कितने ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी माँ और बहन और बेटी के जरूरियात को पूरा करने के लिए, उनके जहेज को देने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर गए हैं। और कितने ऐसे हैं जो जाना चाहते हैं लेकिन वो नहीं जा सके, उनके लिए इनके पास कोई प्लान नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने यूथ को एम्पावर किया है। यूथ को इंशाअल्लाह तफसील से हमारे अमीर मोहतरम बताएंगे कि किस तरीके से यूथ को एम्पावर किया है, उनको टेक्निकल ट्रेनिंग दी जा रही है। इंशाअल्लाह जमात इस्लामी इसके ऊपर काम कर रही है और अपनी इस यूथ को तरक्की देगी, जिसके नतीजे में मुल्क तरक्की करेगा। मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि इस पूरे हल्के की हालत ज़ार इस तरह है कि टैक्स इकट्ठे करने के लिए इन लोगों ने हमारे ऊपर चंद लोग मुसल्लत कर दिए हैं। इनका मकसद हमें एक ही नजर आता है, वो ये है कि पैसे इकट्ठे करने हैं, टैक्स जनरेट करने हैं। चंद लोगों के लिए पूरी की पूरी अवाम को यह गवाल बना रखा है, और पैसे इकट्ठे करने का ऐसा निजाम इन्होंने बनाया हुआ है कि अवाम की तजलील करने से भी ये बात नहीं आते। हम इस जुल्म के निजाम को मुस्तरद करते हैं, हम इस जुल्म के निजाम को खत्म करना चाहते हैं। हम अवाम का निजाम लाना चाहते हैं जिसमें गरीब भी आगे बढ़े, गरीब भी तरक्की करे, सिर्फ अमीर अमीर से अमीर तर न होता जाए। ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मैं भी खाइफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अलियार से। क्यों डराते हो हमको जिंदा की दीवार से? जुल्म की बात को, जबर की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। इसलिए हम उठे हैं कि इंशाअल्लाह इस मुल्क की तकदीर को बदलेंगे। जमात इस्लामी अवाम के हुकूक की जंग लड़ रही है। हमें अपनी जात के लिए कुछ नहीं चाहिए, हम